Yes, students, today we are going to discuss on the chapter that is Iron Age Civilization. So first you will tell me what is Stone Age Civilization. Stone Age Civilization क्या था? Everyone is knowing the period in which stone was used is called Stone Age. The period in which metal is used is called. Give answer everyone. Anyone? The period in which metal is used called Metal Age. The period in which bronze is used called Chalcolithic. bronze. I'm talking about bronze. The period in which bronze was used is called Bronze Age. Chalcolithic period was that period in which copper and stone, both the things were used jointly. That is called Chalcolithic period. Got this? So in this period, in this chapter, you are going to study the Iron Age civilization. Iron Age civilization was that period in which iron was started using. Okay. Now the man got more progress, and now new metal was discovered by the man, and that was iron. Iron was more stronger and durable than any other metals. So this period is called Iron Age. The Bronze Age civilization has flourished in the eastern parts of the world, and the western world was far less advanced at that time. So western world was not that much advanced as eastern parts of the world was. Okay? So eastern part of world में Bronze Age civilization फैला था, क्योंकि western part of world was not that much advanced. ठीक है? Around 1200 BC, the Iron Age followed the Bronze Age. 1200 BC में क्या हुआ कि Iron Age आया किसके बाद? Bronze Age के बाद. आपने पढ़ा ना पहले Stone Age, then Chalcolithic period, Chalcolithic age, then Metal Age started, then Bronze Age started. After that, Iron Age was started. So Iron Age was that period. Iron Age was that period in which iron used. So Bronze Age के बाद जो period आया, that was called Iron Age. The discovery of iron led to manufacturing of stronger tools like sickle, shovel, spade, axe, saw, nails, etc. They help in a variety of occupations. जब आयरन का डिस्कवरी हुआ तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टूल्स बनने लगे. ठीक है, बहुत सारे टूल्स स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स बनने लगे. अब जो है सिकल था, शॉवेल जिसको हम लोग जमीन खोदने के लिए यूज करते हैं, स्पेड यानी कुदाल हो गया, एक्स यानी कुल्हाड़ी हो गया, जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं, एंड नेल्स यानी काटी. तरह तरह के अब चीजें बनने लगी क्योंकि आयरन का इन्वेंशन हो गया था. ठीक है, दे हेल्प इन ए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन. जब तरह तरह के टूल्स बने तो तरह तरह के ऑक्यूपेशन भी आए. लोगों ने तरह तरह के ऑक्यूपेशन को भी अपनाना शुरू कर दिया. ठीक है, सो for example, the axe help in clearing of jungle which led to large scale civilization. अब क्या हुआ, लोगों ने कुल्हाड़ी के मदद से क्या करनी शुरू कर दी, लकड़ियां, जंगलों को काटना शुरू कर दिया. जंगल को काटने लगे तो अब जो सिविलाइजेशन बना वो और भी ज्यादा बड़ा बना. जैसे आपने पढ़ा था कि इंदज वैली सिविलाइजेशन वाज स्टार्टेड नियर द इंदज रिवर. इंदज रिवर के अगल बगल में सिविलाइजेशन बसा था. लेकिन अब कुल्हाड़ी आने के बाद जंगलों को क्लियर किया जा रहा था और वहां पे सिविलाइजेशन बसाए जा रहे थे. ठीक है, there was an increase in the number of cities and towns. अब शहर बनने लगे, छोटे शहर, बड़े शहर, ये सब बनने लगे. They became the center of trade and craft. शहर बनने लगे
तो व्यापार के सेंटर में बन गया, क्राफ्ट भी वहां होने लगा, क्राफ्ट का काम भी होने लगा, क्योंकि टूल्स के मदद से हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे। ठीक है, मेनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के अगल बगल में भी बहुत सारे सिविलाइजेशन बसे थे। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड चेंजेस इन टेरिटरी ड्यू टू वॉर help in the exchange of idea. This in turn help in the development of knowledge of art and craft. Barter system was replaced by the use of currency. तो तरह की अब व्यापार जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से चल रहे थे, एक रीजन वो था, दूसरा रीजन ये था कि लोग माइग्रेट कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, दूसरे जगह जाके बस जा रहे थे। माइग्रेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो पीपल हैव स्टार्टेड माइग्रेशन एंड चेंजेस इन टेरिटरी ड्यू टू वॉर। अब युद्ध भी शुरू होने लगा, अब लोग आपस में लड़ने भी लगे और लड़ाई करके वो दूसरे की टेरिटरीज को जीतने भी लगे, जिससे कि तो इन सब रीजन के वजह से लोगों के आइडियाज में बहुत सारे चेंजेस आए, लोगों के विचार चेंज हुए। ठीक है, दिस इन टर्न इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इसकी वजह से आर्ट एंड क्राफ्ट का नॉलेज में लोगों की वृद्धि हुई। अब है तरह की बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड बाय, बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द यूज ऑफ करेंसी। कैन यू टेल मी व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? एनीवन इज नोइंग बार्टर सिस्टम क्या था बच्चा? यस मैम। जानते हो? कोई भी बोलो। यस मैम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स। यस, वेरी गुड। Barter system was a system in which goods were exchanged to goods. Goods से सामान, मान लो किसी को एक चीजें लेनी है, दूसरी चीज खरीदनी है, तो वो अपनी चीजें देकर दूसरे से चीजें खरीद देता। आज के डेट में भी गांव में आप जाइए तो गांव में लोग धान दे देते हैं और धान के बदले में काम करवा लेते हैं, धान देकर दूसरी चीजें खरीद लेते हैं। तो आज भी ये सब सिस्टम गांव में है, लेकिन ये बार्टर सिस्टम जो था ये तब हो गया, तब खत्म हो गया जबकि करेंसी का प्रयोग होने लगा। करेंसी यानी कि रुपए पैसे आ गए। जब रुपए पैसे आ गए तो इनका तब ये बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। Iron Age is usually associated with the painted grey ware. It refers to the ceramic which have been figured grey and painted with black designs. Plates and balls were common vases made out of printed grey ware. आयरन एज जो था वो कहता है कि प्रिंटेड ग्रे वेयर से रिलेटेड था। जो भी सेरेमिक्स वगैरह बनता था उसको ब्लैक डिजाइन के साथ उसको प्रिंट कर दिया जाता था। प्लेट और बॉल्स पे भी इस तरह के प्रिंटिंग देखने को मिलती। The greatest achievement of the Iron Age was in the field of literature, where poems, dramas, grammar and history were written. इस आयरन एज का सबसे बड़ा अचीवमेंट्स क्या था? आयरन एज का सबसे बड़ा अचीवमेंट था लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें लिखी गई, बहुत सारे पोएट्री, ड्रामा, पोएम्स, ग्रामर और हिस्ट्री भी लिखी गई थी। writing was not only used to keep the records, but it became medium for self-expression and communication of ideas. अब राइटिंग जो था वो सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ही नहीं हो रहा था, बल्कि ये अब सेल्फ एक्सप्रेशन का भी माध्यम बन गया था। मतलब लोगों के विचारों में, लोगों के मन में जो कुछ भी आता था, लोग उसको लिखने लगे। ठीक है, जो उनकी थिंकिंग थी, जो सोच था, जो उनके दिमाग में बातें आती थी, उसको उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। Great thinker wrote about the injustices that were prevalent in the society. और जो महान थिंकर थे, महान राइटर थे, उन्होंने क्या करते थे, समाज में जो बुराइयां प्रेजेंट थी उस पर वो लिखा करते थे। समाज में जो बुराइयां थी उस पर वो लिखा करते थे। इस पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे धर्मों का डेवलपमेंट हुआ। Remain of some of the ancient civilization during Iron Age been found in many parts of the world like Greek, Rome and Iran.
and Iran, the development of iron helped them to flourish. This ancient civilization, which ancient civilization? Iron Age civilization. Iron Age civilization के बारे में बहुत सारे देशों में इसके अवशेष अवशेष मिले हैं, जैसे कि ग्रीक, रोम और ईरान। इन 3 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आयरन एज सिविलाइजेशन के अवशेष जो है वो मिले हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लरिश। और आयरन का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लोगों का भी तेजी से विकास होता चला गया। There is a comparison between 3 civilizations: Greek civilization, Roman civilization and Iranian civilization. ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इवन क्लास में तो वैदिक सिविलाइजेशन क्या था? आपको पता है कि हिंदू धर्म के अंदर कितने वेदास हैं? कितने वेदास हैं बच्चों? मैम 4। कौन कौन से हैं? मैम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यस, 4 वेदा हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आप डीएस के बुक में भी पढ़ते हो ना? तो जिस पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन वेदों से मिला, उस पीरियड का नाम दे दिया गया वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन वाज दैट पीरियड in which you will get the information through different Vedas, and the Vedas are Rigved, Samved, Yajurved and Atharved. So first you should know that what is the word Veda mean. वेदा का क्या मतलब होता है? वेदा और ऋग का मतलब होता है नॉलेज। वेदा और ऋग मीन्स नॉलेज। The knowledge contained in Vedas is for the whole mankind. Because of the term Veda, this period of Indian history is called the Vedic period, as Veda are the main source of information about this period. So Vedic period जो था उसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वैदिक पीरियड में इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिला? वेदों के थ्रू मिला। ठीक है, इसलिए इसको वैदिक पीरियड नाम दिया गया। ठीक है, आप जैसे जानते हो there are 4 वेदा: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। The Vedic period can be divided into early Vedic period and later Vedic period. वैदिक पीरियड को 2 भाग में बांट दिया गया है, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड we also refer as the Rig Vedic period, as the Rig Veda provide us information about this period. अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन ऋग्वेदा से मिलता है। Rigveda provide information about this period. That's why this early Vedic period is called ऋग्वेद period. ठीक है, उसके बाद और जितने वेदास हो गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब जो है इन सब से इंफॉर्मेशन मिलता है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, the other 3 Vedas and some other books give the information about the later Vedic period. Later Vedic period is called epic age. ठीक है, epic age कहा जाता है क्योंकि इतने सारे ग्रंथों से उसकी जानकारी मिलती है। और अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड कहा जाता है क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड की जानकारी हमें ऋग्वेदा से मिलती है। ठीक है, Rigveda is the oldest Veda, composed about 3005 years ago. This includes more than 1000 hymns known as suktas, which means well said. Those who compose hymns call themselves Aryans and their opponents as Dasyus or Dasyad or Dasyul.
सबसे ओल्ड वेदा में जो है वो ऋग्वेदा है। सबसे ओल्ड वेदा कौन है? ऋग्वेदा है। और ऋग्वेदा जो है, तो ऋग्वेदा जो है वो हमें वो जो कि आज से लगभग कह रहा कि 3500 ईयर्स पहले वो लिखा गया था। ऋग्वेदा कब लिखा गया था? आज से 3500 ईयर्स पहले। These include more than 1000 hymns known as sutta, which means well said. इसमें लगभग 1000 हाइम्स हैं, भजन है, जिसको सुक्तास कहा जाता है। जिसको कहा जाता है सुक्ता। ठीक है, सुक्ता इसका मतलब होता है वेल सेड। Those who composed hymn called themselves आर्यन, और जिन्होंने इस हाइम्स को लिखा उसको कहा गया आर्यन। और उनके जो विरोधी थे, उन आर्यन के जो दुश्मन थे, उनको दस्यु या दासास कहा गया। दासास या दस्युस कहा गया। ठीक है, अगर आप इतिहास में जाओगे तो दस्यु जो है, जितने भी लुटेरे बदमाश, उन लोगों को दस्यु कहा जाता है। तो just I am going to ask some questions. First, you should know that what are the word Veda means. Anyone can give the answer. Veda means, Ma'am, knowledge. yes, Veda means knowledge. And Rig Veda means Rig Veda, sorry. Which period is called Rig Vedic period? Which period is called Rig Vedic period, बच्चों? Early Vedic period. Yes, very good. Early Vedic period is called Rig Vedic period. Very nice. ठीक है? Because why it is called so? Early Vedic period को Rig Vedic हम क्यों कहते हैं? मैम क्योंकि वो ऋग्वेद से इंफॉर्मेशन लिया गया। यस, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन किससे मिला? ऋग वैदिक पीरियड। और लैटर वैदिक पीरियड को क्या कहा गया बच्चों? मैम एपिक एज। यस, एपिक एज। लैटर वैदिक पीरियड इज कॉल्ड एपिक एज बिकॉज we get information about this period through rest of the three Vedas and some more book like Brahman, Aranyak, etc., etc., etc. ठीक है, तो so many books give the information of about the latter Vedic period. That's why it is called epic age. क्या कहा गया इसे? Epic age कहा गया। Okay. So now we will see the political condition of Vedic age civilization. What were the political conditions? So Rig Veda mentioned Rajas who were different from the latter Vedic period. Rajas were different from the latter Vedic period. They neither had capital, cities, palaces, or army, nor they collected tax. Early Vedic period के जो राजा होते थे, उनका ना तो कोई राजधानी होता था, ना कोई शहर होता था, ना कोई महल होता था, ना कोई आर्मी होती। जैसे आप जानते हो, राजा है तो उसकी सेना होगी। ठीक है, राजा है तो उसके दरबार होंगे, उसके महल होंगे, पर ऐसा अर्ली वैदिक पीरियड के राजा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के राजा के पास कुछ नहीं था। ठीक है, और ना ही वे लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। किंगशिप वाज नॉट एन हेरिडेटरी बेसिस। हेरिडिटी का मैंने मतलब बताया था, जब एक ही फैमिली के लोग किसी भी पोस्ट को बारी बारी से संभालते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है किंगशिप हेरिडिटी नहीं था, राजा का पोस्ट था हेरिडिटी नहीं था, कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता था। बट इन द लैटर वैदिक पीरियड देयर वर नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम। लेकिन लैटर वैदिक पीरियड आते आते बहुत से छोटे बड़े राज्य बन गए। ठीक है, बहुत छोटे बड़े राज्य बन गए, वेयर किंगशिप वाज हेरिडिटी। और वहां पे किंगशिप कैसा कर दिया गया? हेरिडिटरी कर दिया। किंग ऑफ स्मॉल किंगडम वाज कॉल्ड राजा।
छोटे से किंगडम के जो राजा होते थे उनको किंग होते थे, उनको राजा कहा जाता था। सम्राट और महाराजा कंट्रोल अ लार्ज किंगडम नोन एज राष्ट्र। सम्राट और महाराजा जो था वो दोनों एक बहुत बड़े किंगडम को कंट्रोल करते थे, जिसको कहा जाता था राष्ट्र। द किंग वाज असिस्टेड बाय पुरोहित, मंत्री, सेनानी एंड रानी। The king was assisted by Purohit, Mantri, Senani, and Grame. The king consulted the Sabha and Samiti on all important matters. Sabha was a small body of selected village elders, and the Samiti was a large assembly that was responsible for policy making. तो राजा जो होता था, राजा को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते थे। पुरोहित होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, कमांडर आर्मी होते थे, सेनापति जिसको कहा जाता है, या गांव के जो ग्रामीणी होते थे, गांव के जो हेडमैन होते थे, तो वो सब लोग जो थे राजा को उनके कामों में मदद किया करते थे। उसके बाद राजा का एक सभा और समिति होता था। राजा अपने इम्पोर्टेंट मैटर के लिए सभा और समिति से कंसल्ट करता था। सारे इंपॉर्टेंट मैटर वो सभा और समिति में डिस्कस करता था, तब वो फाइनल डिसीजन लेता था। सभा एक गांव के एल्डर्स का एक छोटा सा बॉडी होता था, और समिति एक बहुत बड़ी असेंबली थी, जिसमें कि जो कि राजा के पॉलिसी मेकिंग के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। अब देखते हैं पावर ऑफ द किंग इंक्रीज इन लैटर वैदिक पीरियड। लैटर वैदिक पीरियड में राजा के पावर जो है वो बढ़ गए। ठीक है, they perform Rasur and Ashwamedh Yagya. The Rasur sacrifice was performed by the king or to gain supreme power, and the Ashwamedh Yagya was the declaring the war against the राजा का पावर जो था लेटर वैदिक पीरियड में, पावर जो है उनका बढ़ता चला गया। अब वो राजा का पावर जो है बढ़ता चला गया। वो अपने पावर को शो करने के लिए राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। राजसूय यज्ञ होता था जब राजा किसी सुप्रीम पावर को पाने के लिए यज्ञ करता था, और अश्वमेध यज्ञ जो होता था राजा अपने पावर को डिक्लेयर करने के लिए यज्ञ किया करता था। The increase in the power of the king resulted in decrease in the power of Sabha and Samiti. जैसे जैसे राजा का पावर बढ़ता गया, वैसे वैसे सभा और समिति का पावर जो है घटता गया। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपने श्री राम की कहानी सुनी होगी। श्री राम ने यज्ञ किया था, और यज्ञ करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने घोड़े को छोड़ दिया। ठीक है, घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के बाद राजा क्या करते थे, अपने घोड़े को छोड़ देते थे। कोई भी व्यक्ति अगर उनके घोड़ों को पकड़ता था तो उसे राजा से युद्ध करना होता। ठीक है, और जहां से लोग नहीं पकड़ते थे और चुपचाप घोड़ा क्रॉस कर जाता था, इसका मतलब था कि वो राज्य जो है वो राजा की कंट्रोल में चला गया, राजा की अधीनता वो स्वीकार कर रहा है। फॉर दिस जब श्री राम ने उसमें यज्ञ किया तो उनके घोड़े को किसने पकड़ लिया, उनके अपने बेटे लव और कुश ने, जो कि अपने माता के साथ जंगल में रहा करते। ठीक है, अयोध्या से लौटने के बाद श्री राम जो है सीता को वापस छोड़ दिए थे। सीता रहने लगी थी जंगल में, और वहीं पर उनके दो पुत्र हुए थे, लव और कुश। और लव और कुश ने चैलेंज कर दिया कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको घोड़ा चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में लोग राजा क्या करते थे, यज्ञ करने के बाद घोड़े को छोड़ दिया करते थे, और जो भी व्यक्ति घोड़े को पकड़ता था उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता। दूसरी ओर जो राजसूय यज्ञ होता था उसमें राजा अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए युद्ध किया करता था। तो
जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया बच्चों? सोशल कंडीशन इन टुमारो आई विल डिस्कस विथ यू विथ इन Yes, ग्रेजुएशन की वीडियो के साथ मैं आपको दिखाऊंगी. ओके, so we don't have much time for this, so I'm leaving my class. Good day to everyone. और क्लास ज्वाइन किया करो, जो पढ़ा दूंगी वो दोबारा